उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण किया गया है, जिसके दर्शन के लिए गुजरात के अलग अलग शहरों से ट्रेनों को रवाना किया जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में बनाए गए भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, जिसके बाद गुजरात के बड़े शहरों से श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। इसी के तहत 5,636 लोग अहमदाबाद, भावनगर, सूरत, राजकोट से रवाना हुए हैं। अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन से भी सैकड़ों राम भक्तों को ट्रेन से अयोध्या दर्शन के लिए रवाना कराया गया। इस मौके पर ट्रेन में श्री राम मंदिर निर्माण आंदोलन के साथ जुड़े कार सेवक, विश्व हिंदू परिषद और संघ के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इस मौके पर पदाधिकारियों और नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या जाने वाली ट्रेन को रवाना किया। 22 જાન્યુઆરીએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સંપન્ન થઈ પછી ગુજરાતભરમાંથી રામ ભક્તોના દર્શન માટેની વ્યવસ્થા ગુજરાતમાંથી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સંઘ પરિવારમાંથી 4 ટ્રેનો રવાના થઈ। કાલે રાત્રે ભાવનગરથી થઈ, આજ સવારે રાજકોટથી થઈ, અત્યારે 4:35 કર્ણાવતીથી અને રાત્રે 8 વાગે સુરતથી ટ્રેન રવાના થવાની છે। લગભગ 5600 રામ ભક્તો દર્શન માટે જવાના છે એમાં, અને અયોધ્યામાં પણ બધી જ વ્યવસ્થા એમના માટે કરેલી છે। એ દર્શન કરીને એ ટ્રેનમાં બધા પરત આવવાના છે, બધા સરપંચો, બધા જ કાર્યકર્તાઓ। गुजरात के सूरत से भी राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। सूरत से अयोध्या जाने वाली पहली ट्रेन को सूरत रेलवे स्टेशन से रवाना कराया गया। आस्था स्पेशल ट्रेन को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराया। दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन उधना से भी अयोध्या के लिए रवाना की गई है। 1,344 भक्तों ने इस ट्रेन में सवार होकर राम मंदिर के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान किया है। ये ट्रेन IRCTC द्वारा चलाई जा रही है। આજે સુરત ખાતેથી સંઘ પરિવારની પ્રાર્થના સાથે શરૂ થયેલી આ આસ્થા ટ્રેન અને એના દ્વારા અનેક રામ ભક્તો આજે જ્યારે અયોધ્યા ખાતે નીકળવાના છે। સુરત ખાતે 22 તારીખે અયોધ્યાની અંદર રામ મંદિરનું ભવ્ય નિર્માણની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી ત્યારે આપણા સૌ માટે ખૂબ ગર્વની ક્ષણ જે આવી કે યાદગાર, જ્યારે પ્રથમ વખત બાળ સ્વરૂપ રામજીના દર્શન થયા તે દિવસે દરેકના આંખોમાં હર્ષના અશ્રુ હતા। 500 વર્ષના સંઘર્ષ પછી આપણે જે કાયદાકીય લડાઈ લડ્યા પછી અનેક કાર સેવકોએ પોતાનું કરેલું યોગદાન અને અનેક કરેલી સેવાઓ પછી આજે જ્યારે આપણા સૌનું આ જે એક સપનું હતું એ આજે સાકાર કરવા માટે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીજી અને રામ પ્રતિષ્ઠાન સંસ્થાન દ્વારા ખૂબ સરસ એની રચના કરવામાં આવી, આયોજન કરવામાં આવ્યું અને 22 તારીખ પછી સતત સ્વયંભૂ લોકોનો પ્રેમ એવો હતો કે ત્યાં પ્રથમ દર્શને જાય, પણ ચોક્કસ આયોજન સાથે આખા દેશના લોકો, કારણ કે દેશનો કોઈ પણ ખૂણો એવો નથી કે જ્યાંથી લોકોને આ રામ માટે આસ્થા ન હોય ને જવા માટે એ લોકો તત્પર ના હોય, એટલે ખાસ કરીને એ લોકોની સગવડ સચવાઈ રહે। વડીલો જે કાર સેવકો પોતે ત્યાં ખૂબ ઠંડીમાં જાય તો એ લોકોને ચાલવાથી માંડીને એ લોકોને અંદર બેડિંગ મળે, યોગ્ય ખોરાક મળે, આ બધી જ રચના સાથે IRCTCના માધ્યમથી અહીંયા 1400 જેટલી જે રામ ભક્તો છે એની આજે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। CEAT इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग के दूसरे सीजन का गुजरात के अहमदाबाद में शानदार आयोजन किया गया। पुणे में डर्ट रेसिंग श्रेणी में सफल शुरुआत करने के बाद सुपरक्रॉस रेसिंग लीग का दूसरा दौर गुजरात के अहमदाबाद के कांकरिया में AK एरिना में किया गया, जिसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के हाथों किया गया। यहाँ दुनिया भर के शीर्ष प्रतिभाशाली राइडर्स ने मैदान में शानदार रेसिंग करतब दिखाए। डर्ट रेस के दूसरे सीजन को 450cc, 250cc और 85cc जैसी 3 कैटेगरी में आयोजित किया गया। पहली 2 श्रेणियां अंतर्राष्ट्रीय और भारत एशिया राइडरों के लिए रही, जबकि आखिरी में जूनियर वर्ग के चैंपियन ने शिरकत की, जिन्होंने अपने राज्यों और शहरों का प्रतिनिधित्व किया। इस दिल धड़क CEAT इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग को देखने बड़ी संख्या में अहमदाबाद के लोगों ने भी आनंद लिया। I ride the 250 International for Mohitas Racing. It's a really nice event. I like it, and yeah, I hope to be back also next year. It's a really nice. They try to do it better every time. Last time it was okay. This time it's much better, and it's getting better. And they do a good job here. Yeah, I'm appreciated. આ જોઈ રહ્યા છો આપણે અમદાવાદમાં છે અને
બહુ ખતરનાક ક્રાઉડે રિસ્પોન્સ આપ્યો છે. 12,000 લોકો આજે આવેલા છે અને હાઉસફુલ છે અને સીએમ સાહેબને બહુ જ મજા આવી છે આ રેસ જોઈને. એટલે હોપફુલી આપણે ઓક્ટોબરમાં પાછા આવી રહ્યા છે સિઝન 2 લઈને, અને જેમાં ગુજરાતમાં ફરીથી આપણે અમદાવાદમાં એક રાઉન્ડ કરવાના છે. સો આજે અમદાવાદનું ક્રાઉડ જોઈને તો હું પોતે ગભરાઈ ગયો છું કે આટલો સારો રિસ્પોન્સ અમદાવાદ સિટીએ આપ્યો છે. આજે એક દિવસમાં 6,000 પ્લસ 6,000 12,000 લોકો આજે આવ્યા છે અને આખા સ્ટેડિયમમાં એક પણ सीट खाली નથી. गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम अंबाजी में मंदिरों के नीति नियम के साथ छेड़छाड़ करने पर गुजरात कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं. गुजरात में भाजपा की सरकार बड़े बड़े दावा करती है. यात्रा धामों के विकास के नाम पे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है. विकास की योजना लाने में बार बार भाजपा बातें तो बड़ी करती है, पर वहाँ मंदिर में जो आम जनता का श्रद्धा और आस्था जुड़ी हुई है, ऐसे मंदिरों की विकास कार्यों में भी बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है. साथ साथ में जिस तरीके से भाजपा सरकार में एक ही अपना जो सोपान होता है, नई चीज़ होती है, तो इसकी वेबसाइट बार बार लॉन्चिंग किया जा रहा है. एक ही चीज़ का 3-3 बार लोकार्पण हो रहा है. एप्लीकेशन है तो इसमें भी पूरी डिटेल्स नहीं मिल रही है. लाइव दर्शन की जो व्यवस्था की अनाउंसमेंट हुई थी वो भी नहीं हो रही है. और साथ साथ में सबसे बड़ी बात, जो अंबाजी जो लाखों माई भक्तों का श्रद्धा का केंद्र है, हजारों लोग माता जी का दर्शन और आशीर्वाद लेने पद यात्रा के रूप में और दर्शन करने के रूप में पहुंचते हैं. ऐसी अंबाजी शक्तिपीठ में जो 51 जो अंबाजी माता का स्वरूप है, इसकी भी शक्तिपीठ के दर्शन के लिए और प्रदक्षिणा के लिए परिक्रमा के रूप में मुख्यमंत्री श्री ने सरकार ने अनाउंसमेंट किया. पर दुख की बात यह है कि भाजपा की सरकार जो विधि विधान है माता जी का, जो राजभोग माता जी का होना चाहिए, इसका श्रृंगार रोज होना चाहिए, वो 51 शक्तिपीठ में नहीं हो रहा. इसकी वजह से धर्मप्रेमी जनता ने कांग्रेस पक्ष के सामने ये बात रखी. हमारे स्थानिक आगेवान डामरा जी, हमारे प्रदेश के कांग्रेस के को कन्वीनर मीडिया के भाई हेमांग भाई, और सब ने मिलकर ये बात हमारे सामने रखी. और कांग्रेस पक्ष इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहती है कि भाजपा जो बड़ी बड़ी बातें करती है, पर भगवान की आस्था के साथ बड़े पैमाने पे खिलवाड़ कर रही है. मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि जो माई भक्तों की आस्था है वो 51 शक्तिपीठ में माता जी का, अंबाजी माता का स्वरूप है, वो सभी में राजभोग की व्यवस्था विधि विधान के मुताबिक हो. जो वहाँ पुजारी की कमियां है वो पुजारी की भी नियुक्ति हो. और साथ साथ में इसका जो माता जी का श्रृंगार होता है, जो सभी धर्मप्रेमी जनता के लिए एक बहुत दर्शन का उत्तम बात होती है, वो बात को भी ध्यान में रख के ये सब किया जाए. सरकार आने वाले दिनों में बार बार कहने पे धर्मप्रेमी जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं करेगी. तो स्थानिक लोगों के साथ मिलके धर्मप्रेमी जनता को साथ रख के सरकार को जिस तरीके से प्रसाद के रूप में भाजपा अपने कॉन्ट्रैक्टर मित्रों को फायदा कराना चाहती थी, इसी तरह आंदोलन जन आंदोलन होगा. और फिर से अंबाजी मंदिर में प्रसाद चालू करना पड़ा मोहनथाल का. इसी तरह ये माताजी की शक्तिपीठ का राजभोग के लिए भी स्थानिक लोगों के साथ में रख के धर्मप्रेमी जनता की आस्था के साथ भाजपा का खिलवाड़ बंद करने के लिए जन आंदोलन होगा. गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक सामान्य सभा आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. गुजरात में क्रिकेट और क्रिकेटरों के हित में काम करने वाली गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन संस्था की 87वीं वार्षिक सामान्य सभा का आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में किया गया, जिसमें बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह और जीसीए अध्यक्ष धनराज नाथवानी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. जिला स्तर के मैदान की देखभाल और कोच की नियुक्ति, वार्षिक फंड में इजाफा जैसे कई मुद्दे मीटिंग में डिस्कस किए गए. बीसीसीआई के मैचों के लिए 90% फंड देने की घोषणा की गई, जो अब तक 70% था. इसके अलावा पेंशनरों के लिए भी विशेष ऐलान सामान्य सभा में किया गया. सेवानिवृत्त महिला क्रिकेटरों को भी पेंशन दिए जाने का ऐलान भी बैठक में किया गया. ऐसे कई निर्णयों को सदस्यों ने सर्वानुमति से पारित किए हैं. आज मिली हुई वार्षिक साधारण सभा में जय भाई जे बीसीसीआई के सेक्रेटरी है और धनराज भाई जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख है, उनकी उपस्थिति में कुछ नए निर्णय लिए गए, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर
के लिए जो सब्सिडी पहले मिलती थी उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया गया। सभी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी खूब खुश है उससे। और जो क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के लिए जब से गुजरात के पार्थिव पटेल, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल और प्रियांक पंचाल के बाद नए क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं है, तो उसके बारे में उसने बहुत अच्छे सुझाव भी किए और सभी डिस्ट्रिक्ट को वो उसकी बारे में उसकी कैसे हम नए क्रिकेटर को आगे बढ़ा सकते हैं उनके बारे में हमको बहुत सारे सुझाव दिए गए। और अभी तक जहां हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई साहब के नेतृत्व में 2011 में जो पेंशन स्कीम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने सारे भारत में सबसे पहले शुरू की थी, जिसको बीसीसीआई 25 रणजी ट्रॉफी खिलाड़ियों के 25 रणजी ट्रॉफी खेले हुए खिलाड़ियों को बीसीसीआई पेंशन देती थी। मगर जो क्रिकेटर 25 रणजी ट्रॉफी से कम खेले हुए हो, जिसको पहले फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता था, उसको वो लोग ने यहाँ पे पेंशन देने की शुरुआत की थी। वो पेंशन अभी आज वो पेंशन को आज उसको 25 से 30% तक बढ़ावा दिया गया है। और जो विमेंस क्रिकेट जब से बीसीसीआई ने टेक ओवर किया विमेंस क्रिकेट को, वो महिला जब से बीसीसीआई ने टेक ओवर किया वो सभी महिलाओं को भी पेंशन आज से मिलना शुरू हो जाए।